Hello everyone, welcome to our session on electrostatics. This is the chapter from class 12th discussion, and we will start our discussion with this first chapter of our class 12th, which is electrostatics. So this is from class 12th. Electrostatics, the first chapter of class 12th. But before starting this chapter, we have to go through some introductory lectures, introductory parts, इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स, इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट कंप्राइजेस ऑफ 2 चैप्टर्स इन योर एनसीईआरटी। आपके एनसीईआरटी में इसके ऊपर 2 चैप्टर्स हैं, तो ये एक चैप्टर नहीं है, ये 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। सेकेंडली, दिस चैप्टर and its concept are used in the next chapter, that is electric current, and also the similar formulas are used in magnetics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले बिल्कुल हूबहू मैग्नेटिक्स में रिपीट होते हैं, सेम फॉर्मूले। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकें। एंड द थर्ड पॉइंट इज, while studying this electrostatics, we will compile our discussion to the revision of class 11th also. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पढ़ने के दौरान हम लोग क्लास 11th का रिवीजन भी करते चलेंगे। फॉर एग्जांपल, while solving the numericals on electrostatics, we will encounter with the concept of vector. So while discussing vector, we will revise everything that we discussed in class 11th. In short, we will also study kinematics, laws of motion, fluid, work, power, energy, rotation, conservation of momentum principle, collision, SHM, and all these concepts we are going to revise in our electrostatic discussion. In this way, this chapter is one of the important chapter of our class 12 discussion, and this is going to help you not only to complete this chapter but also to revise your class 11th. Those who has already done their class 11 topic, then well and good, this will be your revision. And those who have not done their class 11, then don't worry, this chapter is going to help you study your class 11th mechanics. And मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी जो क्लास 11th का टॉपिक पढ़ाई हो उसको उसी दिन जाके रिवाइज कर लें, so that you need not to revise it again, और आपको क्लास 11th भी आसान लगे। So let's begin with our discussion with this introduction. So what is electrostatics? Electrostatics जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। The first word is electro and the second word is static. This word electro came from the term electron. ये वर्ड कहां से आया? इलेक्ट्रॉन से। एंड स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट। इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ बॉडी टू हैव चार्ज। किसी भी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about electric charges at rest. इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वह ब्रांच है इसमें हम लोग चार्जेस एट रेस्ट के बारे में बात करते हैं। ओके, आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू राइट। इन जनरल जो भी स्लाइड्स में लिखा हुआ है वही आपको नोट्स पे बनाना है। मैं एक्स्ट्रा जो कुछ लिखूंगा वो अगर आपको लगे कि कोई पॉइंट स्लाइड्स में छूट गया तो वो आप वहां पे नोट कर लेंगे। However, I will tell you most of the points which you have to note. So you have to write the definition of electrostatics. What is electrostatics? It is a branch of physics in which study of electric charges at rest is done. So let's begin with our discussion. What is charge? The first topic is what is charge? Charge क्या होता है? So charge is the basic property of matter responsible for all electric and magnetic phenomena. चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी मैटर का जिसके वजह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना होता है। किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है? वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड whereas protons are positively charged. On the other hand, neutrons are neutral, they do not have any charge. So there are 2 types of charges, negative and positive. This was first classified by Benjamin Franklin.
बेंजामिन फ्रैंकलिन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि चार्ज जो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो कोई भी बॉडी जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उस पर जितना इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नाउ व्हाट हैपेंस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि प्रोटॉन उसके अंदर होते हैं, और न्यूट्रॉन भी रहते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ऑर्बिट में घूमता है। अब ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से घूम रहा है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दिया जाए और ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, तो इस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तब इस बॉडी पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज आता है। दो तरह के चार्ज किसने पहली बार कहा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और यही वो साइंटिस्ट थे वो इन्वेंटेड लाइटनिंग कंडक्टर, त्वरित चालक कहते हैं इसको, जो कि छतों के ऊपर लगा दिया जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर, जो कि बिजली जब कड़कती है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइटनिंग में जो चार्ज होता है उसको डायरेक्टली वो अर्थ में भेज सकता है। सो दिस इज अबाउट चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक phenomena. How a body acquires charge? By losing or gaining electron. A body acquires positive charge by losing electron. It acquires negative charge by gaining an electron. Right? Okay. Now what is the unit of charge? The SI unit of charge is coulomb. चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम, C से लिखते हैं। एंड CGS यूनिट होता है स्टैट कूलम। CGS यूनिट क्या होता है? स्टैट कूलम। और एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है, ये याद रखना है। व्हाट इज CGS यूनिट? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये एक फ्रेंच सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम था यूनिट का, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं इसको, और उसमें चार्ज का यूनिट स्टैट कूलम होता है। एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। एक कूलम जो होता है बहुत बड़ा चार्ज है, तो हम लोग बहुत छोटे से चार्ज लाइक 10⁻⁻6 कूलम, इसको माइक्रो कूलम भी बोल सकते हैं, 1 माइक्रो कूलम बोल सकते हैं। 10⁻⁹ कूलम, उसको 1 नैनो कूलम कहेंगे। 10⁻12 कूलम, उसको हम लोग 1 पीको कूलम कहेंगे। सो ये चार्ज हम लोग इन जनरल यूज करते हैं, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम एंड पीको कूलम। सो ये चार्ज के यूनिट्स हो गए। अब आते हैं चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन। आपके स्कूल में इसके बारे में पूछा जाएगा कि राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड यू हैव टू राइट देम। पहला प्रॉपर्टी हम लोग सब जानते हैं कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जरा इस बात को थोड़ा सा मैथमेटिकली एडवांस्ड फॉर्म में समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक चार्ज है Q1 और ये एक दूसरा चार्ज है Q2, राइट? अब हम लोग कैसे समझेंगे कि ये दोनों चार्ज लाइक है? तो मैथमेटिकली वी विल से Q1 × Q2 is greater than 0. If this condition satisfies, then we say these charges are like charges. क्योंकि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी ग्रेटर देन 0, और अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, वो भी ग्रेटर देन 0। एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस एक दूसरे क्या करते हैं? रिपेल करते हैं ईच अदर को। तो ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा अपने से दूर इधर, इसी लाइन के सीधे में बिल्कुल, और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा अपने से दूर इधर। These two forces will be repulsive in nature. Similarly, अगर मैं अनलाइक चार्जेस की बात करूं तो Q1 × Q2 क्या लिखेंगे? लेस देन 0, क्योंकि अनलाइक चार्जेस का मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0। एंड व्हाट अनलाइक चार्जेस डू? दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दैट मींस इफ यू हैव अ चार्ज Q1 एंड देयर इज अनदर चार्ज Q2, तो क्या होगा? ये जो Q1 है वो Q2 को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, वो Q2 को अट्रैक्ट करेगा। तो ये Q1 इस Q2 पर इधर की तरफ फोर्स लाएगा अपनी तरफ, ये Q2 इस Q1 पे फोर्स इधर लाएगा अपनी तरफ, अट्रैक्टिव फोर्सेस।
right? So this is the meaning of like charges repel each other and unlike charges attract each other. Okay, so let's start with the next property. Next property is charges can be added algebraically. चार्जेस को हम लोग अल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं एंड दिस इज नोन एज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज कहते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट? कि मान लीजिए एक बॉडी है और इस बॉडी पर चार्ज है एक जगह +3 कूलम, एक जगह -5 कूलम. तो अगर नेट चार्ज आपसे पूछा जाए इस बॉडी पर कितना है, तो आप सिंपली इनको ऐड कर दिए, दिस विल बी -2 कूलम. चार्जेस को आप अल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं. चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज. ये आप लोग को लिखना है. ये सब टॉपिक क्या नाम बोलते हैं उसको? इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज. इनवेरिएंट, वेरिएंट मतलब जो वेरी करे, इनवेरिएंट जो वेरी ना करे. इनवेरिएंट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज का मतलब कोई पार्टिकल रुका हुआ रहे, रेस्ट पे रहे, मोशन में रहे, कितने वेलोसिटी चले उसका चार्ज सेम रहेगा. मान लीजिए एक पेन है, उस पर 5 कूलम का चार्ज है, तो वो पेन 5 मीटर पर सेकंड चले, 10 मीटर पर सेकंड चले, डजंट मैटर, उस पर चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा. सो चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. दिस इज कॉल्ड इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज. So what are we discussed? First, charge is of two types, positive, negative. Like charges repel each other, unlike charges attract each other. Third, charge is scalar quantity, can be added algebraically. Fourth, invariant nature of charge. Now, next topic is quantization of charge. So next, fifth property is quantization of charge. And this is the most important topic. In properties of charge, the most important one is quantization of charge. इसको समझना है बहुत अच्छे से कि quantization of charge का मीनिंग क्या होता है. तो इसको समझने का प्रयास करते हैं. What is the meaning of quantization of charge? सबसे पहले ये quantization वर्ड का मतलब क्या होता है? The word quantization means integral multiple. जब भी आपको कहीं वर्ड ये quantization मिल जाए, इसका मतलब होता है integral multiple of constant. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ कांस्टेंट. इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब इंटीजर को मल्टीप्लाई करना किसी कांस्टेंट के साथ. सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सेज द चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. आप ये सोचो कि किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे आ सकता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करे या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे. अब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और एक्सेप्शन इंटीजर्स में भी हो सकता है. हम लोग या क्योंकि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, तो या तो आप 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3.5 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकते. तो जो भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. Q is equals to Ne. What is N here? Integer. Integer की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होता. So this is the meaning of quantization of charge. So you can see quantization का मतलब integral multiple of constant. So you can see charge is integral multiple of a constant. What is E? Charge on electron value कितनी? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And in fact, the charge on electrons is the smallest charge. ये चार्ज क्या है? सबसे छोटा चार्ज है. कोई पूछे आपसे कि किसी बॉडी पर सबसे छोटा चार्ज कितना हो सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर. इससे छोटा तो चार्ज किसी बॉडी पर हो नहीं सकता. ओके, सो देयर आर 2 levels. One is called macroscopic level and another one is called microscopic level. इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस समझते हैं कि मैक्रो का मतलब क्या होता है और माइक्रो का मतलब क्या होता है. सी, मैक्रो मीन्स होता है लार्ज लेवल और माइक्रो मतलब होता है स्मॉल लेवल. तो मैं इन दोनों लेवल पर इनके बारे में चर्चा करूंगा. Now, if I will ask you a question,
कि क्या किसी बॉडी पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है? यू विल से हो सकता है सर। किसी बॉडी पर चार्ज इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा। अगर मैं पूछूं किसी बॉडी पर चार्ज 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यू विल से हो सकता है। बट इफ आई विल आस्क यू, कैन अ बॉडी हैव चार्ज 2.7 इंटू 10⁻⁻19 कूलम? यू विल से नो, because this is not the integral multiple of electronic charge. किसी भी चार्ज को पता करने के लिए कि वो चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि 2.5 इंटू 10⁻⁻16 कूलम, ये चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आप क्या करो, इसको एन के बराबर कर दो और एन की वैल्यू निकाल लो। तो एन की वैल्यू जगह 2.5 इंटू 10⁻16 बाई ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ये 10⁻19 ऊपर जाएगा, so this will be 25/16 into 1000। अब देखो 4 से 4 बार में घटा, 4 से ये 250 बार में घटा, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 125 बार में। अब तो ये कटेगा नहीं, इसका मतलब ये इंटीजर नहीं आएगा, दिस इज नॉट ए इंटीजर। तो अगर ये इंटीजर नहीं आया मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, अगर ये इंटीजर आ जाता मतलब ये चार्ज पॉसिबल होता। सो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल यू कैन चेक, ऐसे आप निकाल सकते हो, और इंटीजर आएगा तो कहेंगे कि पॉसिबल है, और अगर इंटीजर नहीं आया तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब स्मॉल चार्जेस हैं, ये सब छोटे चार्जेस हैं। लेकिन एट मैक्रोस्कोपिक लेवल हम लोग बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे 1 माइक्रोकूलम। ये 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब छोटा होता है, लेकिन 1 माइक्रोकूलम बहुत बड़ा चार्ज है। दिस चार्ज इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 कूलम। इसको अगर आप एन के बराबर करोगे तो ये पक्का पॉसिबल होगा। देखो एन की वैल्यू निकालो, 10⁻⁻6 बाई ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो जाएगा 10⁻6 बाई 1.6 इंटू 10⁻+19, ये हो जाएगा 10⁻13 बाई 1.6। ये पॉइंट उड़ेगा तो 10 ऊपर, 4 से काटो तो ये 4 बार में, 4 से काटो तो ये 4 से नहीं, इसको 2 से काटेंगे तो ये 8 बार में, 2 से ये 5 बार में, और इसका 2 जीरो इसको दे दो, 3 जीरो दे दो, तो ये 10⁻10 हो जाएगा, और ये 5000, तो 8 से तो 5000 कट जाएगा, अच्छा 48 625 बार में। सो यू कैन सी दिस इज इंटीजर। In fact, if you will take any value here, 1 coulomb, 2 coulomb, 1.5 microcoulomb, any value, you will find that this charge is possible. और ये हमें क्या सिग्निफाई करता है? ये हमें सिग्निफाई करता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्जेस डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट मतलब सर्टेन वैल्यूज, ये वैल्यू हो सकता है, ये वैल्यू हो सकता है, ये वैल्यू नहीं हो सकता। बट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल चार्जेस आर कॉन्टिन्यूअस। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सारे वैल्यूज हो सकते हैं। सो एट मैक्रोस्कोपिक लेवल चार्जेस आर कॉन्टिन्यूअस, whereas at microscopic level charges are discrete. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्जेस क्या होते हैं? डिस्क्रीट होते हैं, और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, so we have an important statement here, you all have to write it, but before writing please listen to it. So what are we studying? We are studying quantization of charge. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? quantization of charge मतलब चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड हमेशा होता है, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक लेवल हो चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल हो, लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ज्यादा सिग्निफिकेंस रोल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये इनसिग्निफिकेंट होता है। वर्ड्स सही से समझना है, ये इनसिग्निफिकेंट होता है, मैंने ये नहीं कहा कि इनवैलिड होता है, इट इज वैलिड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, लेकिन इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चार्ज लेंगे वो चार्ज क्या मिलेगा? मुझे वैलिड मिलेगा। यू कैन चेक इट आउट, कोई भी चार्ज आप लेके देखोगे वो आपको वैलिड मिलेगा। सो ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन व्हाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल इज इनसिग्निफिकेंट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। सो लेट्स राइट दिस स्टेटमेंट।
let's write at microscopic level we deal with charges which are very small, but at macroscopic level we deal with charges like 1 coulomb or 1 microcoulomb, which contains large number of electrons. And this is why at microscopic level, the charges are discrete, whereas at macroscopic level the charges are continuous. And hence at macroscopic level the principle of quantization of charge is insignificant. So this was the first point related to quantization of charge. There is one more point about quantization of charge, and this is about something called quarks. Quark is something, a new term recently discovered. क्वार्क क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं. We know that there are fundamental particles. Atoms जो होते हैं वो fundamental particles से मिलके बने हैं. And what are these fundamental particles? Electron, proton, and neutron. What Murray proposed, there was a physicist Murray. Murray ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये फंडामेंटल है एंड ये किसी से मिलके नहीं बना हुआ है. टिल टुडे जब मैं ये लिख रहा हूं, ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक इलेक्ट्रॉन किसी से मिलके बना हुआ नहीं है. अब आगे कुछ भी हो सकता है. बट ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड क्वार्क्स. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं? क्वार्क से. सो व्हाट इज क्वार्क? क्वार्क्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स. क्वार्क क्या है? क्वार्क न्यूक्लियॉन्स के बिल्डिंग ब्लॉक है. क्वार्क से ही न्यूक्लियॉन्स बने हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं. इलेक्ट्रॉन क्वार्क से नहीं बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बने हैं. सो क्वार्क्स आर बेसिक पार्टिकल्स जिनसे क्या बने हैं? न्यूक्लियॉन्स बने हैं. Who proposed this theory? It was proposed by Murray. Murray also said the second point that quarks जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक को हम लोग बोलते हैं अप क्वार्क और एक को बोलते हैं डाउन क्वार्क. अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क. अप क्वार्क उसको बोलते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, और डाउन क्वार्क उनको बोलते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज हो. फॉर एग्जाम्पल मैं क्वार्क बता रहा हूं जिसका चार्ज होता है 1/3 e के बराबर, प्लस 1/3 e, इसको आप क्वार्क कहते हैं. सिमिलरली प्लस 2/3, ये दोनों क्वार्क भी डिस्कवर किए गए हैं, ये दोनों क्वार्क फेमस है. सिमिलरली 1/3, -1/3, -2/3, ये सब क्या है? डाउन क्वार्क. और प्लस 1/3 e के कोरेस्पॉन्डिंग जो ये क्वार्क है, तो इसे हम लोग एंटी क्वार्क कहेंगे. इन दोनों को एक दूसरे का एंटी क्वार्क कहेंगे, अपोजिट क्वार्क. सो द थर्ड पॉइंट इज एवरी क्वार्क हैज इट्स एंटी क्वार्क. हर क्वार्क के पास क्या होता है? एक एंटी क्वार्क होता है. ओके, एंटी क्वार्क मतलब उसके अपोजिट साइन का. इसका एंटी क्वार्क ये हो गया, इसका एंटी क्वार्क ये हो गया. अप क्वार्क मतलब पॉजिटिव वाले, ये सारे अप क्वार्क हैं. डाउन क्वार्क मतलब ये सारे नेगेटिव वाले. नाउ फोर्थ एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, डोंट यू थिंक दीज क्वार्क्स हैव चार्जेस? अगर मैं पूछूं इस क्वार्क पे कितना चार्ज है, सो विल सी 1/3. ये तो इंटीजर नहीं है. सो दीज क्वार्क्स हैव फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. These quarks have fractional electronic charge. Now this is very interesting. We just discussed something called quantization of charge. Q is equals to NE. कि हर बॉडी पर
जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है. So the question arises across in front of Murray that whether the existence of quarks violate this theory. क्या क्वार्क पार्टिकल का एग्जिस्टेंस इस थ्योरी को वायलेट करता है? आंसर इज नो, इट डज नॉट वायलेट दिस थ्योरी. The existence of quark does not violate this theory. How? Let's see. Let me erase it. You have to note this point. ये चारों पॉइंट आपको नोट करने हैं and then we will write the important statement about quark. So what we are discussing? We are discussing about quarks and we want to know कि अगर क्वार्क्स पर फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है तो क्या क्वार्क का एग्जिस्टेंस क्वांटाइजेशन के थ्योरी को वायलेट करता है या नहीं. द सेम क्वेश्चन इज ऑफ्टन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. सो लेट्स राइट दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. इसको बहुत अच्छे से समझिए और ये क्वेश्चन आपको लिखने आएगा स्कूल में, बोर्ड में. सो लेट्स सी. द एग्जिस्टेंस ऑफ quarks does not violate the theory of quantization of charge. Does not violate the theory of quantization of charge. Why? Because the quarks does not exist independently. क्वार्क जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रादर दे एग्जिस्ट in such a manner that the net charge present on them is integral multiple of electronic charge. The point is कि quarks अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करते. Quarks does not violate the theory of quantization of charge because they does not exist independently. वो अलग अलग नहीं होते. If you are going to find a quark, you cannot find it. What you will find is a proton. आपको क्या मिलेगा? एक प्रोटॉन मिलेगा और ये प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है. ये मूरे ने डिस्कवर किया था. और इन 3 क्वार्क में 2 तरह के क्वार्क होते हैं. 2 वैसे क्वार्क होते हैं जिन पे चार्ज होता है +2e/3 और एक वैसा है जिसपे होता है -e/3. तो अगर इसका चार्ज लिखोगे तो ये +4e/3 हो गया और इसका लिखोगे तो -e/3 हो गया. एंड व्हेन यू विल ऐड देम व्हाट यू विल गेट इज +e +1e. एंड व्हाट इज 1? इट इज इंटीजर. 1 तो इंटीजर. सो क्वार्क्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. एंड कंबाइंड चार्ज क्या रहता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. अकेले एग्जिस्ट करते तभी तो वायलेट करते, लेकिन वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते. सिमिलरली न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है. 2 ये वाले क्वार्क होते हैं, 2 -e/3 वाले होते हैं और एक +2e/3 वाले होते हैं. तो उन पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0. 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर. सो इतनी बातें आपको याद रखनी क्वार्क के बारे में. पहली बात कि क्वार्क्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं बने हुए. इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल. पॉइंट नंबर 2, क्वार्क्स पे जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है. पॉइंट नंबर 3, क्वार्क्स 2 तरह के होते हैं, अप एंड डाउन. हर क्वार्क के लिए एंटी क्वार्क होता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वार्क्स does not violate the theory of quantization of charge. Why? Because quarks does not exist independently, rather they exist in such a manner that
the net charge present on them is integral multiple of electronic charge. I hope this is clear to you. Okay, so let's solve a basic numerical that find amount of charge on 1 mole of electron. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? तो अभी तक हमने बस एक ही फॉर्मूला पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, Ne, और आपसे पूछा है चार्ज ही, और आपको नंबर दिया हुआ है कितने के बराबर, 1 मोल के बराबर। 1 मोल का मतलब 6.022 into 10⁻23, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम लोग को पता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। So if you will multiply them, approximately you will get 96,500 कूलम। इस वैल्यू को 1 फैराडे कहते हैं। So what is 1 Faraday? 1 Faraday is charge on 1 mole of electron, and this question is often asked. However, this concept will be used mostly in chemistry. Chemistry में ये बहुत यूज होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमेशा आपके सर कहेंगे कि बताइए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? So we say 1 Faraday. So this was a simple numerical. एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का है। फाइंड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर कंटेनिंग 360 ग्राम ऑफ वाटर। नाउ प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, एंड देन आई विल डिस्कस इट। सो व्हाट इज गिवन हियर? मास। मास दिया हुआ है 360 ग्राम, and what is this? Water, H2O. Molar mass 18 ग्राम पर मोल। So what I will do first, step 1 में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। So this is 20 moles. Now we can calculate number of atoms. कितने atoms है मेरे पास? सॉरी, एटम्स नहीं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं H2O के, क्योंकि H2O एक कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ सी, H2O के एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? दिस यू कैन काउंट। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके वैलेंस सेल में। वैलेंस सेल में कहते हैं टोटल एटम में, तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन। तो इतने में कितना? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 into 6.022 into 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। एंड इफ यू आर एबल टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को n कहते हैं, तो चार्ज क्या हो जाएगा? Ne, तो इसमें E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 into 6.022 into 10⁻23 रहने देते हैं इसको, into 10 into 1.6 into 10⁻⁻19। तो अगर अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा इंटू ये मिलके तो 96,500 हो जाएगा इंटू 200 कूलम। इसको ऐड कर लेंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो यही टोटल चार्ज हो जाएगा। So this concludes our first lecture, first topic of discussion in electrostatics, and with this we will meet in our next lecture, beginning with what are the ways through which we can charge a body. So this is it for the day. Have a great day. Keep studying.